Hi students, welcome to the lecture number 9 of the solutions of the questions topic straight line from the Cengage and up to the problem number 69 we have solved, and this is the problem number 70। और इसके पहले मैंने बोला है कि ये दो लेक्चर में हम लोकस के प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। We are going to solve the problems specially of the point locus. All the problems are very interesting. In all the problems we are going to find the equation of locus. So students, this is the topic straight line from the Cengage book, and question number 70 is two straight lines rotate about two fixed points minus a comma 0 and a comma 0 in anti-clockwise direction. If they start from their position of coincidence such that one rotates at a rate of double the other, the locus of the curve is। तो स्टूडेंट, पहले आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में मुझे ऐसा दिया है कि मेरे पास दो पॉइंट है a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0। यहाँ से मुझे पता चलता है a कॉमा 0 लाइज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस and minus a comma 0 lies on negative x-axis, and there are two lines in which one is rotating about this point a comma 0, another is rotating about this point b minus a comma 0। लेकिन इनका रोटेट होने का जो रेट है, दिस लाइन्स आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, these lines are rotating in anti-clockwise direction। अब इनका रोटेट होने का रेट ऐसा दिया है, एक लाइन रोटेट होती है, rate of rotation of one line is double the rate of rotation of another line। तो इसका मतलब अगर ये लाइन, सपोज दिस इज द पॉइंट P जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करने का है, वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट P एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P आर, मैं एच के की बजाय x, y ही कंसिडर करता हूँ। Let the point P is the point of intersection of these two lines। If they start from their पोजीशन ऑफ कोइंसिडेंस, तो इनकी पोजीशन ऑफ कोइंसिडेंस एक्स एक्सिस है, यहाँ से वो दोनों रोटेट होती हैं। एक लाइन यहाँ से रोटेट होगी, एक लाइन यहाँ से रोटेट होगी। लेकिन अगर ए लाइन एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाती है तो दूसरी लाइन 2 थीटा एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब ये है कि rate of rotation of the line PA is double the rate of rotation of the line PB। तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस क्या होगा। सपोज ये एंगल अगर 30 है PB का, तो PA का एंगल 60 होगा। इसका मतलब PA इज रोटेटिंग एट द डबल रेट ऑफ PB। तो मुझे P पॉइंट के लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करने का। तो पहले लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं स्लोप ऑफ PA लिखता हूँ। स्लोप ऑफ PA बनेगा tan of 2 theta, and this slope will be y minus 0 by x minus a, and then I will write the slope of line PB, angle made by this line with x-axis theta, therefore its slope is tan theta, and its slope is y minus 0 by x plus a। तो इस तरह से मुझे ये दो इक्वेशन मिल गए हैं। यहाँ से थीटा एलिमिनेट करके मुझे लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा।
So I have this tan of 2 theta equal to y upon x minus a, and I have tan theta equal to y upon x plus. So to eliminate theta, I will use the formula of tan of 2 theta. So आपको पता है tan of 2 theta is 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, which is equal to y upon x minus a. अब मैं इसमें tan theta की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ. So 2 into tan theta is y upon x plus a divided by 1 minus tan square theta बनेगा y square upon x plus a का होल स्क्वायर equal to y upon x minus a. So we will simplify this equation. तो ये बनेगा 2y upon x plus a into x plus a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x plus a होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन x माइनस a. सो यहाँ से ये y की टर्म कैंसिल होगी और ये x प्लस a और यहाँ का एक x प्लस a भी कैंसिल होगा. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर minus y square. So now this will be 2x square minus 2a square equal to x square plus 2ax plus a square minus y square, and the equation is x square plus y square, 2x square minus x square plus y square minus 2ax minus 3a square equal to 0. So this will be the equation of locus of the point of intersection of these two lines. So x square plus y square minus 2ax minus 3a square equal to 0. X square plus y square minus 2ax minus 3 square equal to 0. Option C is correct. So this was the problem number 70. Now we'll see the next problem number 71. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मुझे दिया है कंसीडर द फैमिली ऑफ लाइंस x minus y minus 6 plus lambda into 2x plus y minus 3 equal to 0. And another family of lines का इक्वेशन दिया है x plus 2y minus 4 plus mu into 3x minus 2y minus 4 equal to 0. तो देखिए दोनों इक्वेशन जो है, बोथ इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ u plus kv equal to 0. So you know the equation of family of lines passing through the point of intersection of the lines, u equal to 0 and v equal to 0. Suppose I have one line u equal to 0 and I have another line v equal to 0. तो उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन पास होती है, उस लाइन का इक्वेशन हमें पता है वो क्या होता है, u प्लस के वी इक्वल टू 0. तो इसी फॉर्म में हमें दोनों फैमिली ऑफ लाइंस के इक्वेशन दिए हैं. तो पहले हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे. तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0. यानी इस u इक्वल टू 0 को और v इक्वल टू 0 को जब हम सॉल्व करेंगे तब हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा.
तो चलिए चलते हैं दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो मेरा पहला फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है x माइनस वाई। सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस इज ए। तो ये मेरा पहला इक्वेशन है। ये सपोज दीज आर द टू lines v equal to 0 and v equal to 0 and their point of intersection is a। तो इस फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 6 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस वाई plus 3 equal to 0. So let these are the two lines and their point of intersection is A। तो मुझे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो ये बना मेरा पहला इक्वेशन x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 6। और ये दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मुझे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, 3x इक्वल टू 3 यानी x इक्वल टू 1 मिलेगा। और x इक्वल टू अगर 1 होगा तो मुझे y मिलेगा x इक्वल टू 1। तो y मिलेगा मुझे -5। तो इस तरह से मुझे a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 1, -5। अब देखिए दूसरी जो फैमिली ऑफ लाइन्स है उसका इक्वेशन मुझे दिया है x प्लस, दूसरी जो फैमिली ऑफ लाइन्स है उसका इक्वेशन दिया है x प्लस 2y माइनस 4 प्लस म्यू इंटू 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज बी। तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 मिलेगा, x इक्वल टू 2 तो 2y इक्वल टू 2y मुझे 1 मिलेगा। तो मुझे ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 2, 1। ओके। सो अब मुझे किस पॉइंट का लोकस पूछा है ये हमें देखने का है। इफ द लाइन्स ऑफ दीज टू फैमिलीज आर एट राइट एंगल। अब देखो ये फैमिली की एक लाइन है पी ए, और ये दूसरी जो फैमिली उसकी एक लाइन है पी बी। बोथ लाइन्स आर एट राइट एंगल। बोथ one line of the both families are at right angle to each other, यानी परपेंडिकुलर है। तो लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए ये जो फैमिली है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है उसकी एक लाइन, दूसरी जो फैमिली है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी है उसकी एक लाइन, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस पूछा है। तो मुझे लोकस पी, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। तो मैं एच के की जगह पे एक्स वाई ही लेता हूँ। लेट द पॉइंट पी हैज कोऑर्डिनेट्स x, y which is the point of intersection of these two lines and I have to find the locus of point P। तो यहाँ से मुझे लोकस के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन मिल गई है AP इज परपेंडिकुलर टू BP। तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ BP इज इक्वल टू -1। तो AP का स्लोप लिखते हैं पहले y प्लस 5 y2 माइनस y1 y प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 y प्लस 5 अपॉन x माइनस 1। अब PB का स्लोप लिखेंगे, ये होगा y माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू -1। बस अब इसे सिंप्लीफाई करके मुझे इस P पॉइंट का लोकस का इक्वेशन मिल जाएगा। सो आई विल गेट y स्क्वायर प्लस 4y
-5 इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर यानी -x² होगा, -2x -3x का +3x बनेगा एंड +2 का -2 बनेगा. So like this I have the equation x square plus y square minus 3x minus 4y minus 3 equal to 0. X square plus y square minus 3x minus 4y minus 3 equal to 0. X square plus y square minus 3x minus 4y minus 3 equal to 0. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. y square plus 4y minus 5 x square minus x square minus 3x plus 3x. Okay, so the x square plus y square minus 3x plus 4y, sorry, minus 3x plus 4y minus 3 equal to 0. Minus 3x plus 4y minus 3x plus 4y minus 3 equal to 0. So the option first is correct. First option is correct, right? So this was the problem number 71. See the next 72. And in this question a variable line दी है, उसका slope -2 है. That line cuts x axis and y axis at A and C. एक लाइन है, उसका स्लोप -2 है. दैट लाइन कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट पॉइंट A एंड C. बाद में रोम्बस ABCD कंप्लीट किया है एंड वर्टेक्स B लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x. और मुझे लोकस पूछा है वर्टेक्स D का. तो स्टूडेंट जिस पॉइंट का हमें लोकस पूछा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y कंसीडर कर लेने चाहिए. तो पहले हम ये लाइन कंसीडर करेंगे जिसका स्लोप -2 है. तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल टू -2x plus c. Let slope of line is -2, so the equation of line is y equal to -2x plus. अब देखिए ये लाइन x एक्सिस को a पॉइंट में कट होती है, तो a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा मुझे c/2. तो ये a पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे c/2 0. एंड द सेम लाइन कट्स y एक्सिस एट पॉइंट c, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट मुझे c मिलेगा. तो ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, C. ओके. बाद में मुझे दिया है, अब ये रोम्बस ABCD कंप्लीट किया. कंप्लीट करने के बाद B वर्टेक्स y इक्वल टू x लाइन पे. सो दिस इज द लाइन y इक्वल टू x विच इज बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. एंड दिस पॉइंट B वर्टेक्स B लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू x. तो इसका मतलब B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट सेम होगा. So let the point is h, h. Both coordinates are same. And I have to find the locus of vertex D. तो D का लोकस फाइंड आउट करने का है, तो D के कोऑर्डिनेट्स में x, y कंसीडर कर. ओके. h, k भी कंसीडर कर सकते हैं. बाद में फिर से हमें h, k को x, y से रिप्लेस करना ही पड़ता है. अगर पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप डायरेक्टली x, y कंसीडर कीजिए. तो अब क्या क्या कंडीशन मुझे यूज करनी पड़ेंगी टू फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट डी. तो पहली कंडीशन हम ये यूज करेंगे, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर. Diagonals of the rhombus are perpendicular, that is AC is perpendicular to BD. AC is perpendicular to BD. So product of their slopes is -1. So slope of AC into slope of BD equal to -1. तो AC का स्लोप देखिए, AC का स्लोप होगा C by
-c/2 इंटू बी डी का स्लोप होगा y माइनस एच बाय एक्स माइनस एच इक्वल टू -1। तो ये -2 ये माइनस माइनस +1/2 बन जाएगा। तो ये y माइनस एच अपॉन एक्स माइनस एच, ये सी कैंसिल -2, तो ये माइनस माइनस +1/2। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा 2y माइनस 2h इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड 2y माइनस एक्स इक्वल टू एच। तो ये मेरा पहला इक्वेशन। तो मुझे इसमें से एच एलिमिनेट करने का है। अब दूसरी कंडीशन हम यूज करेंगे, डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, यानी मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC का मिड पॉइंट मिलेगा, AC का मिड पॉइंट देखिए, AC का मिड पॉइंट देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट 0 प्लस c/2/2, c/2/2 एंड c/2। अब इस साइड को मैं BD का मिड पॉइंट लिखता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट, तो वो होगा x प्लस h/2 y प्लस h/2। तो यहाँ से भी मैं दो इक्वेशन बनाता हूँ। तो मुझे x प्लस h/2 इक्वल टू मिलेगा x प्लस h इक्वल टू लिखता हूँ डायरेक्ट, x प्लस h इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे x प्लस h मिलेगा c/2 और y प्लस h मिलेगा c। ओके, अब मैं यहाँ से 2x प्लस 2h इक्वल टू c होगा और इक्वल टू y प्लस h लिख देता हूँ। c को कंपेयर किया, 2x प्लस 2h इक्वल टू c एंड y प्लस h इज इक्वल टू c। तो यहाँ से मुझे 2x माइनस y माइनस y माइनस 2x, देखिए y माइनस 2x इक्वल टू 2h माइनस h होगा। सो दिस विल बी द माई इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड में h है, तो इनकी LHS सेम होगी। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 2y minus x is equal to y minus 2x. So 2x minus x, x equal to minus y, and the equation of the locus of the point P is x plus y equal to 0. So that is the equation of locus of this point P, of point D. तो ये जो लाइन होगी D, ये जो वर्टेक्स होगी D, ये किस लाइन पे होगी, x plus y equal to 0, यानी y equal to -6. Okay, so this is the locus of the vertex D, x plus y equal to 0. लोकस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंडीशन समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कंडीशन समझ में आती है, प्रॉब्लम में क्या कंडीशन दी है, उस कंडीशन का यूज करके आप लोकस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो पहले आप क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड कीजिए, समझ लीजिए, and then use the condition given in the problem to find the equation of the locus. See the next problem number 73. This is also a very nice question. तो इसमें मुझे दिया है a pair of straight lines passing through the point A 1, 1 are drawn to intersect the line 2x plus 4y equal to 5 at point B and C. तो ये जो पेयर ऑफ लाइन्स है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, 1 है और ए पॉइंट 1, 1 से पास होने वाली दोनों लाइन इस लाइन 2x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है बी और सी में। आगे पढ़िए। इफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स इज 5/3 यानी 60 डिग्री, ये पेयर ऑफ लाइन्स है, इसका एंगल 60 डिग्री है। तो लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, तो ये पहले इन सेंटर का लोकस पूछा है, लेट आई बी द इन सेंटर, इसका मुझे लोकस फाइंड आउट करने का है। इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, तो ये मैंने इन सर्कल बनाया है। तो यहाँ पे मुझे क्या कंडीशन यूज करनी पड़ेगी? तो पहले ये जो इन रेडियस है, लेट दिस पॉइंट इज पी, लेट दिस पॉइंट इज क्यू, तो आई ए, आई पी, आई क्यू ये सभी इक्वल होगा। सॉरी, आई पी एंड आई क्यू विल बी इक्वल, ये दोनों सेम होगा। दीज आर इन रेडियस। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करने का है इन सेंटर का लोकस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में x, y कंसिडर करता हूँ। अब एंगल बिटवीन दिस पेयर ऑफ लाइन्स इज 60 डिग्री, तो मेरा ये एंगल बनेगा 30 डिग्री। इन रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट को आई पी, तो ये एंगल बनेगा 60। तो मुझे यहाँ पे साइन, ये जो ट्रायंगल है इसमें मुझे रेशो लेने का है साइन 30। तो साइन 30 बनेगा आई पी बाय आई, तो मुझे आई ए मिलेगा आई ए विल बी इक्वल टू साइन 30, तो ये बनेगा 1/2 आई पी बाय आई। ओके, तो मुझे सॉरी आई पी डिस्टेंस मिलेगा 2 टाइम्स आई, आई पी डिस्टेंस मिलेगा 2 टाइम्स आई। आई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई, आई पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई। ओके, साइन 30 साइड अपोजिट 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, तो ये यहाँ से एक कंडीशन मिल गई। अब मुझे फाइंड आउट करने का है आई क्यू डिस्टेंस। तो मुझे लोकस फाइंड आउट करने के लिए इतनी कंडीशन सफिशिएंट है। आई पी इज इक्वल टू आई क्यू, तो आई पी तो मुझे मिल गया है हाफ ऑफ आई। ओके, तो ये आई ए इज इक्वल टू आई क्यू यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इन सेंटर ऑन दिस लाइन, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा 2x प्लस 2y माइनस 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 4y, सॉरी दिस इज 2x प्लस 4y बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा 4 प्लस 16। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हाफ ऑफ आई का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। आई हैज कोऑर्डिनेट्स x, y, ए हैज कोऑर्डिनेट्स 1, 1, तो यहाँ से मुझे मिलेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर
plus y minus 1 whole square equal to mod of 2x plus 4y minus 5 by ये बनेगा 2 रूट ऑफ 5। यहाँ से मैं ये 2 कैंसिल कर देता हूँ। नाउ आई विल सॉल्व स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये रूट 5 का स्क्वायर 5 बनेगा। अंदर का ब्रैकेट्स खोल देता हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2। अब इसका मुझे स्क्वायर लिखने का है तो ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखता हूँ। तो 2x प्लस 4y का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर प्लस 16xy प्लस 16y स्क्वायर। तो ये बनेगा ब्रैकेट में -10 इंटू 2x प्लस 4y माइनस 2ab -20x माइनस 40y प्लस 25। सो ये साइड बनेगी मेरी 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 10 इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16xy माइनस 20x माइनस 40y प्लस 25। तो देखिए ये 16y स्क्वायर में जो टर्म इन लोकस के पहले हम ऑप्शन यहाँ पे लिखे नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन में आंसर ऐसा है 16y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर ये बनेगा 11y स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 11y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर राइट प्लस 16xy प्लस 16xy माइनस 20x तो ये बनेगा माइनस 10x माइनस 40y ये माइनस 30y बनेगा और 25 माइनस 10 तो ये बनेगा प्लस 15 इक्वल। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द इन सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी। तो इसमें मैंने कंडीशन यूज किया है इन रेडियस, बोथ इन रेडियस आर इक्वल, आई पी इक्वल टू आई क्यू एंड आई पी इज हाफ ऑफ ए आई। ए आई का मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है और आई क्यू का मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला यूज किया है। सो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. So this was the problem number 73. See the next 74. तो इसमें मुझे पूछा है locus of the points which are at equal distance from the two lines. These are the two lines. इसमें एक लाइन दी है मुझे 3x plus 4y minus 11 equal to 0. सेकंड लाइन है 12x plus 5y plus 2 equal to 0. लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू लाइन्स। तो ये दोनों लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट अगर है, इसका इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सेम है तो इस पॉइंट का लोकस क्या होगा? इस पॉइंट का लोकस होगा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइन्स इज द लोकस which is the angle bisector. Angle bisector is the locus of a point which is equidistant from the two lines. ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं। तो मुझे सिर्फ एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन ही फाइंड आउट करने का है, लेकिन मुझे दिया है कि वो जो लोकस है यानी जो बाइसेक्टर है विच इज एंड विच इज नियर द ओरिजिन। तो इस जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है वहाँ पे ओरिजिन भी है, यानी मुझे पूछा है बाइसेक्टर of the angle containing the origin. Bisector of angle
कंटेनिंग ओरिजिन। ऐसा एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन बताओ कि जिस एंगल में ओरिजिन हो। तो स्टूडेंट्स इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन एंड बाइसेक्टर ऑफ द एंगल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन अगर फाइंड आउट करने का है तो मुझे दोनों लाइन की इक्वेशन में C1 C2 पॉजिटिव लिखने के हैं। तो मेरी पहली लाइन है, इसमें C1 कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं लिखता हूँ -3x -4y +11 इक्वल टू 0। इसमें कांस्टेंट पॉजिटिव है ही ऑलरेडी, तो ये लाइन एज इट इज लिखने की है 12x + 5y + 2 इक्वल टू 0। तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला आपको पता ही है। सिर्फ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन अगर है तो मेक C1 C2 पॉजिटिव। मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करके देता हूँ। सी द फॉर्मूला एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन्स AX + BY A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0 and A2x + B2y + C2 इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे C1 C2 पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 तो बाइसेक्टर का इक्वेशन बाइसेक्टर कंटेनिंग द ओरिजिन A1x + B1y + C1 by root of A1² + B1² इक्वल टू A2x + B2y + C2 by square root of A2² + B2². If these C1 C2 are positive, then this is the equation of bisector of the angle in which origin lies containing the origin। तो ये इसलिए मैंने ये C1 C2 पॉजिटिव बना लिए। ये देखिए +11 + 2। अब इस फॉर्मूले से मुझे बाइसेक्टर का इक्वेशन मिल जाएगा। सो आई विल राइट -3x -4y + 11 by root of 9 + 16, तो ये 5 हो जाएगा। अब इस साइड में 12x + 5y + 2 बाय ये रूट ऑफ 144 + 25 यानी ये 13 हो जाएगा। तो बस अब इसे सिंप्लीफाई करने का है। तो ये बनेगा -39x -52y + 143 इज इक्वल टू 60x + 25y + 10। तो ये 60x + 39x, तो ये बन जाएगा 99x + 77y -133 equal to 0. So this is the equation of the bisector of these two lines containing the origin, and this is the locus of the point which is equidistant from these two lines and nearer the origin। nearer the origin का मतलब आप समझ गए होंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। और ये कैसा निकालने का है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। दोनों लाइंस के इक्वेशन में C1 C2 पॉजिटिव रखो और यहाँ का साइन भी पॉजिटिव ले लो, तो आपको बाइसेक्टर मिलेगा कंटेनिंग द ओरिजिन। बाइसेक्टर ऑफ द एंगल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन पूछा है, तो ये जो प्लस साइन लिया है उसको माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा बाइसेक्टर ऑफ द एंगल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन where C1 C2 should be positive। So this was the problem of locus, but it was actually the problem of angle bisector। Okay, see this was 74। now we will see the problem number 75। तो इसमें दिया है स्टूडेंट्स लोकस ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन ईच मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ दिस लाइंस। तो पहले मैं इस इक्वेशन को आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये भी फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, तो पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ।
तो ये मेरा इक्वेशन है 4a प्लस 3 × x माइनस a+1y minus 2a plus 1 equal to 0. So this is the equation of the family of lines, and I have to find the locus of foot of perpendicular from origin. ये देखिए, ये origin है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, तो लेट दिस पॉइंट इज P. इसका मुझे लोकस फाइंड आउट करने का है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x, y कंसिडर किया है, और परपेंडिकुलर इज ड्रॉन ऑन वन ऑफ द लाइन ऑफ दिस फैमिली. तो पहले मैं इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड आउट करना चाहूँगा. तो इस इक्वेशन को मैं u प्लस के वी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखता हूँ. तो देखिए, इक्वेशन मुझे ऐसा मिलेगा 4x प्लस 3x माइनस ay माइनस y माइनस 2a माइनस 1 इक्वल टू 0. तो a कॉमन लेके मुझे इक्वेशन मिलेगा 4x माइनस y 4x minus y minus 2 plus 3x minus y minus 1 equal to 0. So this equation is in the form of u plus kv equal to 0. u plus kv equal to 0. तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो मिलेगा बाय सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस. 4x minus y equal to 2 और 3x minus y equal to 1 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे. 4x माइनस 3x इज x, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा, x इक्वल टू 1. तो माइनस y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू मुझे मिलेगा 4x माइनस 3x इज x प्लस 2 माइनस 1 इज 1. सो x इक्वल टू 1 माइनस y इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू मुझे मिलेगा, देखिए 4 माइनस 2 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1. ओके, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये लाइन एक्चुअली इस फॉर्म में है, ये लाइन मैंने इस फॉर्म में लिख ली है u प्लस के वी इक्वल टू 0, और इसका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, वो मिला है 1, 2. सो लेट दिस पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स a1, 2. तो इस फैमिली ऑफ लाइंस के एक लाइन पे, हर एक लाइन पे अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मुझे लोकस पूछा है. तो यहाँ पे ओरिजिन ओ है, तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कंडीशन मुझे क्या यूज करने की है. OP इज परपेंडिकुलर टू AP. OP इज परपेंडिकुलर टू AP. तो OP अगर AP को परपेंडिकुलर है, तो फिर से प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज -1. स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ AP कितना होगा, -1. अब OP का स्लोप देखिए, OP का स्लोप मिलेगा y/x पासिंग थ्रू ओरिजिन. क्लियरली y/x आपको सभी फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आप लोकस के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब AP का स्लोप देखिए, y-2 अपॉन x-1, y-2 अपॉन x-1 इक्वल टू -1. तो ये बनेगा y इंटू y-2, y इंटू y-2 इक्वल टू -x इंटू x-1. So x into x-1 plus y into y-2 equal to 0. So x square minus x plus y square minus 2y 0. तो ऑप्शन चेक करते हैं. तो ऑप्शन तो इस फॉर्म में नहीं है,
ओके, तो यहाँ पे 2x माइनस वन का होल स्क्वायर है और y प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर एडजस्ट किया है। ओके, तो पहले मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इंटू 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसमें मैं ऐड करता हूँ 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ऐड कर दिया, प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2y, इसमें भी 1 ऐड कर दिया, तो ये 1 प्लस 4 मैंने 5 ऐड कर दिया। ओके, तो अब ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये बनेगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू ये बनेगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो आंसर तो अपना यही है, ओरिजिनल इक्वेशन, लेकिन ऑप्शन में इसे थोड़ा कन्फ्यूजन करके दिया है, तो आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या फिर किस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिलता है ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो इक्वेशन है 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस वन होल स्क्वायर। 2x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2x minus 1 whole square plus 4 into y minus 1 whole square equal to 5. So this is the equation of locus. Once I will check 2x minus 1 whole square plus 4 into right. So this is the equation of locus. So students, if you are not understanding any step or any concept, तो फिर से आप वीडियो डबल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो लोकस के प्रॉब्लम के लिए आपको टॉपिक की हर एक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, तब आप लोकस के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है straight line from the Cengage book, and in this lecture we have solved all the problems of the locus. So students, we will stop here and we'll continue with the next problem in the next lecture. So आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओके, बाय।